इतनी बड़ी फैन बेस होने के बाद व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअली में आपके वोट्स के आधार पे ही आपको निकाला गया है? आपका दिल मानता है ये? आई डोंट बाय सच थिंग्स। जब तक मैं घर में था मुझे एक बार भी फीडबैक नहीं मिला, एक बार भी मुझे अपडेट नहीं दिया गया कि ओके आपको बहुत प्यार मिल रहा है या आप ट्रेंड हो रहे हो या ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं पता था। बाहर आने के बाद जब मुझे ये पता लगा है तो हम लाइक ब्रो वोट्स तो कम नहीं आ सकते, दैट्स इम्पॉसिबल. And yes, I did watch Hina's tweet. I did watch a lot of other people tweet about the nominations, the style of nominations, the control the makers are having over nominations. Yeah. और फिर easily, conveniently evict कर देना is also something that I've been noticing. तो ठीक है, I just understand that whatever they want to show on the show, I am not fitting the story anymore. Yeah. So they found a way to just sideline me and remove me. And the whole thing was coming through the nominations only because the entire week I was not seen on the show. They were only showing the part where Nehal and I were sitting with each other and or whatever that cute stuff. तो बस उसी में मेरे लग गए भाई. Farhana has, I mean, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में. उसने इतनी बकवास की है मेरे पीछे while we were on good terms. जब वो मुझसे लड़ रही थी जब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेरे से obviously we were not friends, so she would have said the worst things about me and I don't give a damn. But especially when we were good to each other and I was really counting on her as a friend and she goes to Nehal and says the worst things about me कि बसीर को हाथ से नहीं जाने देंगे, मालती आ गई है बसीर के ऊपर डोरे डाल रही है तो हम उसको पकड़ के रखेंगे और मैं बसीर को यहाँ तक लाके ऐसे छोड़ देती हूँ and all these kind of like I am not a toy, I am not even an object that you play around with me like that. But वो सब clips बाहर बहुत circulate हुई हैं और उसकी वजह से शायद लोगों ने मुझे एक अलग नज़रिए में देखना शुरू किया. So damaging someone's image in that way is, she doesn't even realize that because I know Farhana. बेहाल और बहाना Oh. which is that hashtag dedication. What? You should be put in jail to ask me this question. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with Basir Ali. Welcome to Instant Bollywood. Hello. Well played. एविक्शन के बाद तो आप डबल ट्रिपल ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे. एंड हिना खान ने भी एक ट्वीट किया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल गया है कि इफ़ फिक्स नॉमिनेशन हैड अ फेस देन इट्स यू. ऑल्सो इतनी बड़ी फैन बेस होने के बाद व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअली में आपके वोट्स के आधार पे ही आपको निकाला गया है? आपका दिल मानता है ये? I don't buy such things. मैंने कल के एपिसोड में भी क्लियरली कहा था कि सलमान सर आके ओपिनियन दें और उन्होंने क्लियरली कहा है इफ इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू टेक इट और नॉट एंड आई सेड आई विल नॉट बाय इट. एग्जैक्टली. तो जब मैं बाहर आया और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे मेरे नाम के साथ क्या चल रहा है, आई वॉज फ्लैबरगास्टेड. क्योंकि जब तक मैं घर में था मुझे एक बार भी फीडबैक नहीं मिला, एक बार भी मुझे अपडेट नहीं दिया गया कि ओके आपको बहुत प्यार मिल रहा है या आप ट्रेंड हो रहे हो या ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं पता था. बाहर आने के बाद जब मुझे ये पता लगा है तो हम लाइक ब्रो वोट्स तो कम नहीं आ सकते, दैट्स इम्पॉसिबल. And yes, I did watch Hina's tweet. I did watch a lot of other people tweet about the nominations, the style of nominations, the control the makers are having over nominations. Yeah. और फिर easily, conveniently evict कर देना is also something that I've been noticing. तो ठीक है, I just understand that whatever they want to show on the show, I am not fitting the story anymore. Yeah. So they found a way to just sideline me and remove me. And the whole thing was coming through the nominations only because the entire week I was not seen on the show. They were only showing the part where Nehal and I were sitting with each other and or whatever that cute stuff. तो बस उसी में मेरे लग गए भाई. एग्जैक्टली. लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी मैं आपका रिएक्शन उस पर जानना चाहूँगी कि आपकी और अभिषेक की जो राइवलरी कभी होती है तो वो सिद्धार्थ एंड आसिम के कंपैरिजन में होती है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? It's a big reference. मेरे लिए सिद्धार्थ is like, I mean, I really look up to him. And even Asim on the other side, I really genuinely like his presence on a reality show. Yeah. उसको भी कोई नहीं रोक सकता भाई. Asim Riaz is also Asim Riaz. तो बजाज को दोनों रेफरेंस में से हटा दो आप. दोनों में मेरा नाम दे दो चलेगा, बट ये बजाज ना सिद्धार्थ है ना आसिम है, ठीक है, बहुत बड़ा दे दिया उसको. Crazy. But I do understand that if this season had a rivalry, it was definitely me and Bajaj and I. And yeah, I mean, I would have loved to see how that would go till the end. But I think the makers had a different plan. God had different plans. So I mean, not in my control. Yeah, sorry to disappoint you guys, but you won't get to see that anymore. एग्जैक्टली. नेहल से मेरी अभी ऊपर बात हो रही थी इंटरव्यू में दैट आप दोनों जैसे ही बाहर निकले दोनों ने एक दूसरे को क्या बोला. शी सेड कि मेरे को लग रहा था कि बसीर सीक्रेट रूम में जाएगा और मैं इविक्ट हो जाऊंगी. डू यू एक्चुअली फेल दैट वे कि शायद
कहीं ना कहीं मेरा चांस है? अगर मैं अकेला आउट होता ना तो मुझे सीक्रेट रूम ले जाते, ये मैं वहां सोच रहा था। बट नेहल क्योंकि वो सीक्रेट रूम में रह चुकी थी, उसको फिर एक बार सीक्रेट रूम ले जाना इम्पॉसिबल था। Impossible और नेहल और मैं हाथ पकड़ के बाहर वॉक किए। तो अब ब्लाइंड फोल्ड भी लगाया, जब हाथ पकड़ के हम जा रहे हैं तो देयर वाज नो वे कि मैं सीक्रेट रूम जाऊं, उसका हाथ छोड़ के उसको बाहर ले जाएंगे। इट वाज क्वाइट द चैलेंजिंग पार्ट। तो मुझे लगा कि या नहीं हो सकता था वो। एंड कुछ चीज़ें ना अपने शो के निकलने के बाद पता चलती है कि किसने मेरे बारे में क्या बोला है, या फिर इसने बैक बिचिंग किया है, इसने उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है। व्हाट डू यू हैव टू से, हु इज दैट वन कंटेस्टेंट दैट यू वुड लव टू शो द रियलिटी, जिसको मैं वापस से बता सकूं, yeah, रियलिटी to चेक just give him the or her reality check? फरहाना। Okay. फरहाना हैज, आई मीन क्या बोलूं मैं उसके बारे में, उसने इतनी बकवास की है मेरे पीछे while we were on good terms। जब वो मुझसे लड़ रही थी, जब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेरे से obviously we were not friends, so Yeah. she would have said the worst things about me and I don't give a damn। But especially when we were good to each other and I was really counting on her as a friend, and she goes to Nehal and says the worst things about me कि बसीर को हाथ से नहीं जाने देंगे, मालती आ गई है बसीर के ऊपर डोरे डाल रही है तो हम उसको पकड़ के रखेंगे, और मैं बसीर को यहाँ तक लाके ऐसे छोड़ देती हूँ, and all this kind of like I am not a toy, I am not even an object that you play around with me like that। But वो सब clips बाहर बहुत circulate हुई हैं और उसकी वजह से शायद लोगों ने मुझे एक अलग नज़रिए में देखना शुरू किया। So damaging someone's image in that way is, she doesn't even realize that because I know Farhana। Yeah. उसको आइडिया भी नहीं है कि बाहर उसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी उसे प्यार मिल रहा है, जितने उसको व्यूज मिल रहे हैं, उस हिसाब से she doesn't understand the magnitude of effect that things can have outside, and only when she comes out and the show will be over जब समझ आएगा उसको। एग्जैक्टली। लेकिन एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आफ्टर यू, आपका जो कार्ड आया था एलिमिनेटेड का, अमाल्स रिएक्शन वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ना वो शॉक हुए थे ना वो सैड हुए थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से अगर हम जज करें तो। डिड यू फील दैट वे कि ये क्या है? 100%। Good one, man, because Yeah. I was like, what is this expression? Because he's not sad. Yeah. He's still got that little smile on his face. Yeah. But it did end up like in a way he was crying in the bedroom when I went to pick up my mom's letter. He cried like a baby. Neelam, Amal, Farhana hugged me and cried for at least 3 minutes, and she was shaking, not like just shedding tears. She was shaking. Yeah. तो वो सब दिखाया नहीं है टीवी पे। Yeah, अच्छा। तो हाँ, ये नहीं सब दिखा मैंने है। फील किया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो आई कैन वाउच दैट। तो बाकी या आई मीन पता नहीं, व्हाई डू यू थिंक ये सब दिखाया नहीं गया है? I don't know. द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, उसको कितना कुछ मिल जाता टू शो कि मेरे एविक्शन से कितना इफेक्ट हुआ, बट वो नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? मुझे ये भी जानना है कि जब एक एविक्शन होता है उसके बाद लाइव एपिसोड में वहीं से शुरू होता है ना, वो सब दिखाया नहीं गया, वो पूरा कट करके उसके आगे का पार्ट दिखाया गया है। व्हाई आर पीपल डूइंग दिस? Crazy. And you know what? बसीर, इनिशियली अमाल ने आपके बारे में ये कहा था कि बसीर जस्ट गेट्स कैरीड अवे विद गर्ल्स फॉर नो रीजन, एंड आई डोंट नो आगे जाके उनको पता चला कि बसीर इज नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think maybe early in the game उन्होंने बोला होगा, but early in the game बोलना समझ में भी आता है because it's too much for people to understand। Yeah. But eventually he did relate a lot of things with me, and he saw the person I was, and then he understood me more than he did in the beginning। ओके, बिफोर वी रैप इट अप एक छोटा सेगमेंट करते हैं कि वक्त की कमी है हमारे पास। ओके, बेहाल और बहाना, which is that hashtag What? You should be put in jail to ask me this question। I would definitely say Bahana because Behal was still friendship। Yeah. Bahana was too much flirting and too much fun and fights, and it was so much more entertaining and interesting। Yeah. But only till the show। Agreed. Only till the show। ओके, आपके नाम लेके कौन फुटेज खाता था? खाता था नेहल। ओके, वन कंटेस्टेंट यू डोंट वांट टू मीट आउटसाइड? It should be Bajaj because I don't think there's anything interesting about him। ओके, स्नेक फ्रेंड? Sorry, snake friend। Snake friend Tanya। हु शुड लर्न बेसिक मैनर्स? Malti। लेजीएस्ट वन? Shabazz। ओवर कॉन्फिडेंट वन? I think यार कोई भी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट कुनिका जी। ओके, लास्टली इमेज कॉन्शियस? Image conscious Neha। Okay, thank you so much, Basir. All the very best. Thank you very and much। once again, well played, and may you glow, may you grow. आपके plate में और भी ज़्यादा आए। Inshallah, Thank you so inshallah। much. Thank you very much। Hi guys, this is Basir Ali and you're watching me on Instant Bollywood।